You set the rules, not God. Yeah. आप अपने जीवन के नियमों को बनाते हैं, परमेश्वर नहीं। Some Christians have this weird sovereignty idea where they think God is running people like puppets. और कुछ मसीह लोग एक बहुत ही अटपटी सी बात समझते हैं परमेश्वर के बारे में, जहां वो समझते हैं कि परमेश्वर अपनी स्वेच्छा से कठपुतलियों की तरह मनुष्य को नचाता They है। think sovereignty means they say God is in control. और उनका ये मतलब है कि परमेश्वर जो है वो नियंत्रण में है हर एक के। Oh, is it? अच्छा, Doesn't look like. ऐसा लगता तो नहीं है, Because he's not. क्योंकि वो नहीं है। In fact, can I say something? God doesn't want to control. लेकिन हकीकत यह है कि परमेश्वर किसी पर नियंत्रण लेना नहीं चाहता। God doesn't want to control. That's why he raised sons and daughters and gave them the free will and told them that you do what you see the Father doing. इसीलिए वो, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण लेना नहीं चाहता, इसीलिए उसने बेटों और बेटियों को उठा के खड़ा किया और उनको वो स्वेच्छा दी कि अपनी मर्जी के मुताबिक वो जीवन जिए। Hallelujah. You know, if I'll ask you this question, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, who is the number one hearer of what you say? कौन सबसे ज्यादा आपके मुंह से निकलने वाली बातें सुनता है? Come on. Anybody? Okay. That's a beautiful answer. You are the number one hearer of what you say. आप खुद सबसे ज्यादा सुनते हैं अपने मुंह से निकलने वाली बातें। Yeah, God hears it. परमेश्वर सुनता है। What I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, what you keep on saying, you know, if I can give an example so that you understand. मैं अगर उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। How many people understand the language of, I mean, like computer has a hardware, okay, the external box, the machine hardware. So कंप्यूटर में हार्डवेयर होता है जो बाहर का डब्बा होता है, Then there is a software, और एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें, and then there is electricity. और फिर उसमें बिजली होती है। All three are needed. तीनों की जरूरत पड़ती है। Hardware, जो बाहर का डब्बा है, software, उसमें जो सॉफ्टवेयर है, electricity. और बिजली। You can have the best hardware, आप दुनिया का सबसे बढ़िया डब्बा खरीद के ला सकते हैं कंप्यूटर का। the Apple generation 5000. उस पे एप्पल की 5000 सीरीज, The best software. और दुनिया का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर उसमें डाल But सकते if there is no electricity, हैं। लेकिन अगर बिजली नहीं है it's of no use. तो वो बेकार है। In the same way, this is the hardware. वैसे ही ये हार्डवेयर है, Your soul is the software, आपका प्राण जो है वो सॉफ्टवेयर है, and the electricity is the Spirit of God. और जो बिजली है वो परमेश्वर का आत्मा है। Amen. Now hear what I'm saying. अब ध्यान से Now सुनो। you can have the best hardware, आपका सबसे बढ़िया हार्डवेयर हो सकता है, and the electricity is there, और उसमें बिजली भी है, but your software is corrupt. अगर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है Nothing works. तो ढंग से काम नहीं करेगा। If a virus enters in your software, अगर किसी के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए, no matter how expensive your computer is, it becomes of no use. चाहे आपका कंप्यूटर कितना भी महंगा क्यों ना हो, किसी काम का नहीं रहता। Then you have to buy these antivirus तो आपको वो एंटीवायरस खरीदने पड़ेंगे to kill these viruses. इन वायरसेस को मारने के लिए। Amen. In the same way, वैसे ही, do you know what's your software? क्या आप जानते हैं आपका सॉफ्टवेयर क्या है? Your self-talk is the biggest software. आप जो खुद से बात करते हैं वो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर Not है। what others say about you. What you say about you is the most powerful thing which creates this software. जो दूसरे लोग आपके बारे में कहते हैं वो नहीं, लेकिन जो आप खुद अपने बारे में कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली तरीका तो सॉफ्टवेयर को ठीक करने का या उसको Amen. बनाने का। What happens when you keep saying what God says about you? You will have the greatest software. Satan wants to put virus in your software. शैतान आपके उस सॉफ्टवेयर में वायरस डालना चाहता है। But praise God, we have an antivirus. पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे पास एंटीवायरस है। You start scanning your heart, आप अपने हृदय को जांचना शुरू करते हैं। right? It says scanning for viruses. वो कहता है वायरस की जांच चल रही है। So when you scan your heart through the word, then you find, oh, this is what I have been saying for so long. That's against what God says.
I'm going to eliminate. Put to permanent recycle bin, deleted forever. तो जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर के अपने दिल को जांचते हैं तो आप पाते हैं कि मेरे दिल में ऐसी बातें हैं जो सही नहीं है, मैं ऐसी बातें समय से मानता हूं जो सही नहीं है वचन के मुताबिक, तो आप उसको अपने जीवन से हटा देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं अपने दिल से. Amen. You make a commitment that I will speak what God says about me. आप ये ठान लें कि मैं वही बातें कहूंगा जो परमेश्वर मेरे बारे में कहता है. God is not controlling our life as puppets. Yeah, better, much better. परमेश्वर हमारा जीवन पपेट्स की तरह नहीं चला रहा है. As free beings, He created us in His image and gave us the power to choose. आजाद प्राणी बना करके उसने हमें शक्ति दी कि हम खुद के लिए चुने. We make the choices and then we eat the fruit of those choices. हम चुनाव करते हैं और फिर हम ही उन चुनावों का प्रतिफल अपने जीवन में देखते हैं, उसको झेलते हैं.